Hello students, welcome to S. Lal's Institute of English. Today I am going to explain you the first chapter of First Flight, A Letter to God, written by G.L. Fuentes. Actually his full name is Gregorio Lopez Y. Fuentes. He is basically a Mexican novelist, he is a poet also, and he is a journalist also. As it is written in the book, he was one of the leading Mexican revolutionary writer. So, what I'm just going to give the brief of this author. Basically, Fuentes was born on Lanzarote in the Canary Islands. And what happened that he first went to sea as a deck boy with his father when he was at the age of 10. So definitely he was a teenager, but in that age only he started working on a cargo ships out of the Canary Island to Trinidad and Puerto Rico, and from the Spanish ports of Valencia and Sevilla to South America. Then what happened? He permanently migrated to Cuba, and at that time his age was 22. But it is very sad to explain that he died from cancer at the age of 104 in 2002. So this is the background of the author. So you must remember the name of, I'm just repeating the name of the writer, the author, Gregorio Lopez Y. Fuentes, G.L. Fuentes. Now I'll give you in very brief what is the theme of the story. Actually, this story, A Letter to God, is a story of extreme faith in God. भगवान में अटूट विश्वास के प्रति एक कहानी है. Through this story, the writer has tried to depict the invincible faith in God of a simple poor farmer. एक बेचारा गरीब किसान के रूप में भगवान के प्रति उनकी जो अटूट विश्वास है, इसको दिखाया है अथर ने. And here is a character named Lencho. इसमें एक कैरेक्टर होता है लेंचो, who was very poor, but he was very honest. वो बहुत ईमानदार था and hard working, मेहनती था, मेहनती किसान था, hard working farmer. And because he was having no money, so he wrote a letter to God and asked God to send him some money. वो भगवान को एक चिट्ठी लिखता है और उनसे बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं, आप मुझे कुछ पैसे भेज दो. ऐसी थीम है इस कहानी की. So in your book, before we start the story, there is something to be discussed. They say faith can move mountains. लोग कहते हैं ना, विश्वास जो होता है पर्वतों को भी हिला देता है, डिगा देता है. It means that confidence is required for each and every work. Over confidence is not required. ये रिमेंबर करना आप कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस जरूरी होता है एक आदमी को किसी भी बड़ी से बड़ी चीजों को हासिल करने के लिए. But what should we put our faith in? लेकिन चीज ये होती है कि हम विश्वास किस चीज पर करें, किस चीज पर विश्वास करें ताकि हमारी कॉन्फिडेंस जो है डेवलप करे और हम कोई भी बड़ी से बड़ी चीजों को हासिल कर लें. दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस. यही प्रश्न है इस कहानी के अंदर में जो बहुत ही डेलिकेटली, बहुत ही विनम्रता से इसको पोज किया गया, इसको दिखाया गया, इसको उकेरा गया है, इसको समझाया गया इस कहानी में. Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are hewn. Lencho एक किसान होता है, जैसा मैंने पहले भी बोला, और उसने भगवान को, ईश्वर को एक पत्र लिखा asking for 100 pesos. Pesos is a currency of Mexico. हम लोग उसको रुपए में आंक सकते हैं.
तो उसने 100 रुपए के लिए 100 पेसोस के लिए उसने चिट्ठी लिखी। डज लेंचोस लेटर रीच गॉड? अब यहां प्रश्न है कि लेंचो ने भगवान को चिट्ठी लिखी। कभी ऐसा, बड़ा अजीब सा लग रहा है सुनने में, लेकिन उसने चिट्ठी लिखी। तो अब क्वेश्चन होता है कि क्या उसकी चिट्ठी पहुंच गई भगवान तक? क्या ईश्वर तक पहुंच गया? डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या भगवान ने उसे पैसा भेजा? थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस वुड बी। अब आपको यह सोचना है कि इन प्रश्नों का जवाब क्या हो सकता है, खुद से सोचना है। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज। और ये भी कल्पना करनी है, अनुमान लगानी है कि ये स्टोरी किस तरीके से आगे बढ़ती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, इस पर डिस्कशन करना है। सो when you will get the chance in the classroom of yours, you will discuss with these questions with your class teacher, subject teacher. Now I'm going to start the story. The story starts with the scene of the house. The house, the only one in the entire valley. एक ऐसा घर जो पूरे के पूरे, entire means पूरा, whole, पूरी वैली में एक अकेला तन्हा घर होता है। Sat on the crest of a low hill, और वो एक निचली सी पहाड़ी की चोटी पे वो घर होता है। From this height one could see the river, और इस ऊंचाई पे जो मकान है, जो घर है, वहां से एक व्यक्ति जो है वो नदी को देख सकता है। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और फिर पके हुए जो फसल होते हैं, कुछ भी कह सकते हो फसल के रूप में, मकई को भी ले सकते हो, जो मक्के होते हैं उसको भी ले सकते हो, वो उसको देख सकता है। डॉटेड विथ फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और जो डॉटेड विथ फ्लावर्स यानी फूलों से भरा हुआ। डॉटेड मीन्स, डॉट का मतलब होता है बिंदु, बिंदु का मतलब होता है डॉट डॉट डॉट, ऐसा दिखना, मतलब चारों तरफ से बिंदुओं के रूप में, बिंदुओं का एक पूरा का पूरा एक झुंड दिखाई देता है, यानी कि फूलों का झुंड जो है वो दिखाई देता है। और अच्छी फसल होने का वो एक प्रकार से प्रॉमिस करता है, एक भरोसा दिलाता है, एक वायदा करता है, क्योंकि फूल से ही फल बनते हैं। The only thing the earth needed was a downpour, at least a shower. बस एकमात्र ऐसी चीज थी जो धरती को, जमीन को जरूरत थी, और वह थी एक भारी वर्षा। डाउनपोर, डाउनपोर का मतलब होता है भारी वर्षा, खूब मूसलाधार बारिश, हेवी रेन। और कम से कम एक बौछार, कम से कम एक बारिश की जो बौछारें होती हैं, शावर होती हैं, जो हल्की बारिश होती है, वो मिलनी चाहिए थी, इसकी जरूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, पूरी दिन भर, पूरी दिन भर लेंचो जो था वो न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो कि जानता था खास तौर से, चूंकि वो उससे जुड़ा हुआ था, तो वह अपने फील्ड को, अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था। had done nothing else, उसने कुछ नहीं किया दिन भर, but see the sky towards the northeast, वह उत्तर पूर्व की तरफ, दिशा की तरफ आकाश को देख रहा था, और कोई काम नहीं कर रहा था। उसने कोई अतिरिक्त काम नहीं किया, वो सिर्फ बारिश का इंतजार कर रहा था, सोच रहा था कि किस तरह से बारिश आएगी, और उसकी दिशा किधर थी? नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, एक स्त्री होती है, और उसको संबोधित करके बोलता है कि ऐ स्त्री, ऐ औरत, हमें अब सचमुच कुछ पानी मिलने वाला है, ऐसा वो बोलता है। और वो स्त्री जो है, द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, और वो औरत जो थी, जो रात का खाना बना रही थी, उसने जवाब दिया, उसने उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ, अगर भगवान की इच्छा हुई तो जरूर बारिश होगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, और जो थोड़े बड़े लड़के थे, जो थोड़े काम करने लायक जो बड़े लड़के थे, युवा लड़के थे, वो खेत में काम कर रहे थे। While the smaller ones were playing near the house, और जो छोटे छोटे बच्चे थे वो घर के नजदीक में खेल रहे थे। Until the woman called to them all, और वो तब तक खेल रहे थे, या वो बड़े लोग तब तक काम कर रहे थे, जब तक कि उस औरत ने जो खाना बना रही थी वो बुलाया नहीं। Come for dinner, वो बुलाती है, चलो डिनर तैयार हो गया, रात्रि भोजन के लिए आ जाओ। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, और जैसा कि
भोजन का टाइम हो गया था और भोजन के लिए बुलाया गया था। तो जिस समय भोजन कर रहे थे, ये लोग रात्रि भोजन कर रहे थे, उसी समय लेंचो ने एक ऐसा अनुमान भी लगाया था कि बारिश हो सकती है। तब तक क्या हुआ? बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल। बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और यही नहीं, उत्तर पूर्व दिशा में बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल, खूब घने बादल आते दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था कि अप्रोच कर रहे हैं, वो आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। आप लोग जानते हैं जब बारिश होने से पहले हवाएं चलती है और वो हवा बड़ी ठंडी होती है, बड़ी मधुर हवा होती है। तो वैसे ही हवा, बड़ी ताजी हवा चल रही थी और बड़ी सुहावनी हवा चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और जब ऐसी बात होती है तो आदमी को क्या लगता है कि और कोई काम नहीं करे, बस सिर्फ वो बाहर में आनंद लेने की, जो बारिश की बूंदें गिरती हैं अपने शरीर पे, उस वर्षा का अनुभव करने के लिए वो लोग निकल जाते हैं। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब लेंचो भी जाता है, लेंचो भी जब लौटता है, ही एक्सप्लेन्ड, वो उसको आश्चर्य होता है कि हवाएं तो चली, बारिश की बूंदें तो समझ में आई, लेकिन जब वापस आता है तो उसको आश्चर्य हो जाती है कि यह आकाश से गिरती हुई वर्षा की बूंदें नहीं है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर पाइप्स। उसको यह लगता है, क्योंकि ये लोग सारे किसान, जितने भी किसान है, खास करके इसमें एक कैरेक्टर लेंचो को लिया गया है। लेंचो जो है वो इस बारिश की बूंदों को पैसे के रूप में देखता है। बोलता है ये बारिश की बूंदें जो है पैसे के रूप में, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट की गिर रही है, और छोटी जो बूंदें बारिश की गिर रही है वो 5-5 सेंट की सिक्के की तरह गिर रही है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers trapped in a curtain of rain. तो संतोषजनक भावना से उसने जो पकी हुई जो मकई के खेत थे उसको देखना शुरू किया, जो फूल से भरा हुआ था। और उसने देखा कि कैसे पूरी बारिश की चादर से वो खेत जो है ढक गया। Wrapped in a curtain of rain. Wrap लिखता है ना, ढक जाना। Wrap means ढक जाना, covered. But suddenly a strong wind began to blow. और अचानक बहुत तेज हवा चलने लगती है। And along with the rain, a very large hailstones began to fall. हवा तो चलने लगती है, लेकिन बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लगते हैं। Hailstones, वो भी गिरना शुरू कर देता है। These truly did resemble new silver coins. और बड़े बड़े जब ओले गिरने लगते हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले लेंचो ने क्या सोचा कि बड़ी बूंदे जो है वो 10-10 सेंट की हैं, छोटी बूंदे 5-5 सेंट की हैं। अब यहां पर रिजेंबल कर रहा है, लग रहा है कि उसी तरीके से ये भी मिलता जुलता, ये चांदी के नए नए सिक्के जैसे गिर रहे हैं, न्यू सिल्वर कॉइंस की तरह। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन। और जो बच्चे हैं वो अपने आप को इस बारिश में एक्सपोज कर रहे हैं, भिंगा रहे हैं, कोई उसको तकलीफ नहीं हो रही है। ran to collect the frozen pearls। और वो दौड़ करके उस मोतियों को, वो जमे हुए मोती क्या थे? वो हेल स्टॉर्म्स थे, बर्फ की बड़ी बड़ी बूंदें थी, उसको ओले थे, वो उसको इकट्ठा करने चले जाते हैं। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। अब लेंचो बहुत दुखी हो जाता है। वो सोचता है कि ये तो ओले तो समूचे फसल को खराब कर देंगे, और बोलता है कि अब मौसम से कुछ खराब होता जा रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली। काश, मैं आशा करता हूं कि ये बहुत जल्दी ही ये ओले गिरने बंद हो जाए, समाप्त हो जाए। फॉर एन आवर द हेल रेंज ऑन द हाउस। 1 घंटे तक ओले जो है घर के ऊपर में बरसते रहे। द गार्डन, बागीचे में बरसते रहे। द हिल साइड, पहाड़ियों की घाटियों में बरसते रहे, ढलान पे बरसते रहे। द कॉर्नफील्ड, मकई के खेतों में बरसते रहे। ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में ओले गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट। पूरा का पूरा खेत जो है सफेद हो गया। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। और ऐसा लग रहा था जैसे नमक जैसी चीजों से ढक गया, पूरा सफेद हो गया, चारों तरफ ढक गया। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। एक पत्ती भी नहीं बची हुई थी पेड़ों पे, ऐसी स्थिति हो गई थी।
द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह बर्बाद हो गया। द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल थे जो पौधों में लगे हुए थे वो झड़ गए, वो गिर गए, पौधों से अलग हो गए। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो का जो हृदय था, दिल था, वो उदासी से भर गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान रुक गई, तब क्या हुआ? कुछ भी छूटा नहीं था। जब तूफान जब रुक गई, तब एक नई समस्या आ गई। He stood in the middle of the field, वो खेत के बीच में खड़ा हो गया, and said to the sons, to his sons, वह खेत में खड़ा होकर के अपने बच्चों से बोला, a plague of locusts would have left more than this. अब प्लेग, प्लेग एक प्रकार का बीमारी होता है, लेकिन यहां प्लेग का मतलब हो गया एक ऐसा आफत, एक ऐसा डैमेज, और वो भी लोकस्ट का। लोकस्ट एक टिड्डे होते हैं, टिड्डे बड़े खतरनाक होते हैं, वो सारे फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो उसमें बता रहा है कि ये इस बार तो इतना एक दुख भरी रात हो गई है, ये सारा सारा काम बेकार हो गया है, ये पूरा का पूरा टिड्डा इसको समाप्त कर देगा, कुछ भी नहीं बचेगा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, अब तो इस साल हम लोग के पास कोई कॉर्न बचेगा ही नहीं, कोई अनाज होगा ही नहीं, ऐसा उसने कहा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वह रात एक दुख से भरी हुई रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा मेहनत, जितने हम लोग खेतों में मेहनत किए, फसल को उगाए, फूल तक आ गए, अब फल लगने थे उसमें, वो सब बर्बाद हो गए। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब तो यहां कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सकेगा। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल तो हम लोग, इस वर्ष तो हम लोग पूरे के पूरे सारे लोग भूखे मर जाएंगे, ऐसी बातें उसने कहा। नाउ देयर आर सम ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक गिवन टू यू, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड कि आपने जो अभी तक पढ़ा है उसमें कुछ छोटे छोटे ओरल क्वेश्चंस हैं कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। यहां पर था कि लेंचो ने किस चीज की आशा की थी। जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसने आशा की थी कि ही होप टू गेट गुड हार्वेस्ट। अगर कब? ओनली इफ इट हैड अ डाउन पोअर और एटलीस्ट अ शावर, कम से कम छींटे जैसी बारिश आती या थोड़ी बारिश भी होती तो उसकी फसल अच्छी हो जाती, यही चीज होप किया था। Now the second question is, why did Lencho say the raindrops were like new coins? उसने कहा कि ये जो लेंचो ने ऐसा क्यों कह दिया कि वर्षा की जितनी भी बूंदे हैं, बारिश की बूंदे हैं, वो नए सिक्के की तरह है। ऐसा इसलिए कहा, he said so because the varieties of the size of the raindrops, उसने एक बड़े जो साइज के जो रेन ड्रॉप थे उसको 10 सेंट्स का मान लिया था, और जो छोटे थे वो 5 सेंट्स का मान लिया था, और उससे भी बड़े जो थे उसको सिल्वर कॉइंस के रूप में मान लिया था। तो यू कैन से दैट द बिग ड्रॉप्स मीन मोर रेन एंड मोर मनी, द स्मॉलर ड्रेन्स मीन्स ड्रॉप्स मीन्स a little showering of rain. The third question goes, how did the rain change? बारिश कैसे बदल गई? What happened to Lencho's field? तो you know that it changed into a hailstorm. पहले तो बड़ी बड़ी बूंदे आई, फिर छोटी छोटी बूंदे आई, अब ये हेल स्टॉर्म में बदल गया, ओले के रूप में बदल गया। अब क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होगा? What happened to the Lencho's field? Lencho's crop was completely ruined. Or not only that, a plague of locusts would have left more than that. वो उस पर लोकस्ट टिड्डे भी हमले कर दिए। And the last question goes, what were Lencho's feelings when the hail stopped? अब यहां पर था कि जब ओले गिरने बंद हो गए तो लेंचो के मन में कैसी भावनाएं आई? तो डेफिनेटली ही वाज सैड, rather you can say frustrated, because all his labor had gone waste. They will go all hungry that year. ऐसे इसके आंसर, ऐसे जवाब इसके बनेंगे। So my dear students, this was the first part of your chapter. In the next part, I will explain the further story. Thank you.